Welcome students to lecture number 2 of the biotechnology, actually the applications of biotechnology. So in the last class I discussed with you people the topics that we have to go through in this chapter. So here they are on your screen. आपकी स्क्रीन पे ये टॉपिक्स है, ये मैंने आपको कल बोला था कि ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट ऑफ द टॉपिक्स वाज एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी जीन ट्रांसफ़र को यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर में कुछ एडवांसमेंट्स लाने के लिए. एप्लीकेशन इन द मेडिसिन, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़, मैंने बोला था हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे अबाउट द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. हम इथिकल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, इथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी. हम बायोपैरेसी और बायो पेटेंट जैसी टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे. नाउ मैंने सबसे पहले बोला एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर हम डिस्कस करेंगे. मैंने बोला कि यहाँ पे हम एक्चुअली सिंपली कैसे यूज़ करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को. हम बनाएंगे जेनेटिकली सुपीरियर वैराइटीज़ ऑफ द प्लांट्स. विल मेक जेनेटिकली सुपीरियर वैराइटीज़ ऑफ द प्लांट्स. And what do we call those plants as? We call them genetically modified plants, GM plants, or there is a simple term transgenic plant. Now, I gave an example yesterday. I said if there are two rice plants and these two are having their specific properties, for example, this rice one plant is having increase in the yield but it is sensitive to drought, and rice 2 plant is having less yield but it is resistant to drought. So we can pick the gene responsible for resistance in this rice 2 and transfer it in rice 1. That way we will get a rice plant which is having increased yield as well as resistance to the drought. So that plant will be really helpful for us. Now first of all, I discuss with you what type of transgenic plants can we make, or what is the use of genetically modified plants, what can we expect from them. So I discuss with you people that we can make genetically modified plants with improved nutritional quality. I gave an example. We have made in that is mentioned in your book. A rice variety of rice has been made called as golden rice. एक राइस बनाया गया है, स्पीशीज़ बनाई गई है, वैरायटी बनाई गई है राइस की, दैट इज़ गोल्डन राइस. एंड ये गोल्डन राइस क्या होता है? इट इज़ बीटा कैरोटीन एनरिच्ड राइस. ठीक है, इसमें विटामिन ए यानी बीटा कैरोटीन जो है उसकी लेवल्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो दैट वे इट बिकेम इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन वाइज. We can make plants with more tolerance to abiotic stress like cold, drought, salt, heat, etc. We can make plants which have less post-harvest losses. For example, we have made flavor saver tomato in which the gene responsible for early ripening has been inhibited, which is that gene that is polygalacturonase gene. That has been inhibited. That way, इसका जो post-harvest loss है that is reduced, वो कम हो जाता है. वी कैन मेक द प्लांट्स विथ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस. हम ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जिनमें हर्बिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंस है, एंड हम इनफैक्ट हमारे बनाया भी है. वी हैव मेड ट्रांसजेनिक टोबैको विच इज़ रेजिस्टेंट टू वीटिसाइड कॉल्ड ग्लिफोसेट. एंड इसके अलावा हम बना सकते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट, ठीक है, निमेटोड रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हम बना सकते हैं. कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, आपके बुक में भी मैंशन है. ठीक है, तो एक बात हमने नोट की लास्ट पे, हमने बोला कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा दैट इज़ टोबैको, सो दैट यू विल ऑलवेज मैंशन. ठीक है, तो नाउ विल गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. In our next topic we will discuss some of the examples that are mentioned in your book, some of the examples of transgenic plants. ठीक है, some specific examples of transgenic plants हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो our topic will be some important examples of transgenic plants. Some important examples of transgenic plants. Some important examples of transgenic plants. एंड इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी बोर्ड के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपकी बोर्ड में एक स्प्रेड क्वेश्चन आता है. ठीक है, दैट इज़ ए ट्रांसजेनिक कॉटन. दैट इज़ ट्रांसजेनिक कॉटन और जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन. तो फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी विल डिस्कस, दैट इज़ ट्रांसजेनिक कॉटन और जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन.
तो हमें अब कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स डिस्कस करनी है जो आपकी बुक में मेंशन्ड है। तो उन एग्जांपल्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसजेनिक कॉटन को या जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन को, ठीक है। दिस कॉटन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बीटी कॉटन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बीटी कॉटन। वाई बीटी कॉटन हमें अभी पता चल जाएगा क्यों इसको बीटी कॉटन बोलते हैं, ठीक है। बट आप याद रखोगे इसको बीटी कॉटन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो बीटी कॉटन है इट इज़ रेजिस्टेंट टू पेस्ट्स, रेजिस्टेंट टू पेस्ट्स, ठीक है। पेस्ट क्या होता है? पेस्ट वो ऑर्थोपोड्स होते हैं या वो इंसेक्ट्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं इस प्लांट को या इसकी क्रॉप को, ठीक है। सो दीज आर इंसेक्ट्स विच डिस्ट्रॉय कॉटन या प्लांट्स, ठीक है। तो हमने बोला ये रेजिस्टेंट होता है पेस्ट्स को, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसको अच्छी तरह से हमने कैसे बनाया, ठीक है। देखो ये बीटी कॉटन जो है ना, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, दिस बीटी कॉटन इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग ए जीन, by transferring a gene, ठीक है, that gene is called as crygene, that gene is called as crygene, transferring a gene called crygene, एक जीन है जिसको क्राइजीन बोलते हैं, CRY क्राइजीन, ठीक है। ये ट्रांसफ़र किया गया है कहाँ से? फ्रॉम ए बैक्टीरियम, फ्रॉम ए बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम से ट्रांसफ़र किया गया है। उस बैक्टीरियम का नाम है, दैट बैक्टीरियम इज कॉल्ड बैसिलस थरनजेनेसिस, बैसिलस थरनजेनेसिस, ठीक है। और यहीं से आया है ये BOT, ठीक है। जैसे जो आपने नाम देखा ना BT कॉटन, तो ये BT कॉटन जो है इसका ये B जो है इट मीन्स बैसिलस, इट इज डायरेक्ट फ्रॉम बैसिलस थरनजेनेसिस, और T आया है फ्रॉम थरनजेनेसिस, ठीक है। तो ये कैसे बनाया हमने BT कॉटन? हमने एक जीन आइसोलेट किया है जिस जीन का नाम है क्राइजीन, ठीक है। ये कहाँ से हमने आइसोलेट किया है? एक बैक्टीरियम से आइसोलेट किया है, दैट बैक्टीरियम इज कॉल्ड बैसिलस थरनजेनेसिस, ठीक है। तो यही हमने ट्रांसफ़र किया है क्राइजीन फ्रॉम बैक्टीरियम बैसिलस थरनजेनेसिस इनटू कॉमन कॉटन प्लांट, ठीक है। और जो फिर हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी बन गई उसको हमने BT कॉटन बोला, ठीक है। तो क्लियर रहना चाहिए, हम पहले एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। हमने बोला पहली एग्जांपल जो हमारे पास है दैट इज़ ट्रांसजेनिक कॉटन और जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, ठीक है। हमने बोला इसको हम BT कॉटन भी बोलते हैं, रीज़न हमें पता चल गया। रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि ये कॉटन जो है हमारा या इसको हमने एक जीन ट्रांसफ़र करने से बनाया, जो जीन हमने लाया है बैसिलस थरनजेनेसिस एक बैक्टीरिया से, ठीक है। और हमने बोला ये पेस्ट रेजिस्टेंट है, यानी इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। कुछ इंसेक्ट्स कस्ट कॉटन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उन्हीं इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है ये, ठीक है। तो बनाया कैसे हमने? एक जीन क्राइजीन हमने ट्रांसफ़र किया है बैक्टीरियम बैसिलस थरनजेनेसिस से इनटू ए कॉमन कॉटन प्लांट। हमने कॉमन कॉटन प्लांट में वो ट्रांसफ़र किया है। कौन सा जीन है? क्राइजीन है, ठीक है। और कौन सा बैक्टीरियम है? बैसिलस थरनजेनेसिस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड BT जीन, ठीक है, BT जीन, ठीक है। देखो नॉर्मली ये क्राइजीन क्या करता है, ठीक है। तो क्राइजीन के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्राइजीन क्या करता है। क्राइजीन, ठीक है। क्राइजीन नॉर्मली ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस ए प्रोटीन, ठीक है, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज क्राई प्रोटीन। इट प्रोड्यूस ए प्रोटीन कॉल्ड क्राई प्रोटीन, ठीक है। इस बैक्टीरियम में एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है दैट्स कॉल्ड क्राई प्रोटीन। अब ये जो क्राई प्रोटीन है ये इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक होता है, इट इज़ टॉक्सिक टू इंसेक्ट्स, ठीक है। इसको वन वर्ड में बोलता है, इट इज़ इंसेक्टिसाइडल, ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है, ठीक है। नाउ एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि ये जो क्राई प्रोटीन है, ठीक है, नॉर्मली इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज इनएक्टिव प्रोटीन, इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज इनएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। प्रोड्यूस्ड एज इनएक्टिव प्रोटीन मतलब जिस तरह से ये प्रोड्यूस होता है ना, जब ये पहले बनता है तब ये इनएक्टिव होता है, ठीक है, अपना एक्शन नहीं दिखा पाता है, ठीक है, तब भी इनएक्टिव प्रोटीन होता है, ठीक है।
बट व्हेन इट इज़ इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट, जब ये मान लो ये एक इंसेक्ट है, ठीक है, टेक दिस एज ए इंसेक्ट, ठीक है, इसको आप एक इंसेक्ट ले लो, ठीक है, तो ये इंसेक्ट का मान लो ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, तो व्हेन दिस इंसेक्ट इंजेस्ट इट, ये मान लो रेड कलर का है, ठीक है, तो जब ये इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करेगा, व्हेन इट इज़ टेकन बाय द इंसेक्ट, तो जब ये इंसेक्ट के गट में पहुंचता है, वहाँ इंसेक्ट के गट का अल्कलाइन पीएच, ठीक है, इसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो क्या याद रखना है, ठीक है, व्हेन इंजेस्टेड, व्हेन इंजेस्टेड, व्हेन इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट इट इज़ एक्टिवेटेड बाय, हाँ पूछा जा सकता है आपको किससे एक्टिवेट हो जाता है, इट इज एक्टिवेटेड बाय अल्कलाइन पीएच, वेरी गुड, इट्स एक्टिवेटेड बाय अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, गट मतलब एलिमेंट्री केनाल, ठीक है, तो अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट इसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, एंड जब ये एक्टिवेट हो जाता है देन इट बाइंड्स टू मिड गट इप्थीलियल सेल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसको बाइंड करता है, ठीक है, इट बाइंड्स टू मिड गट मतलब गट के बीच वाले पोर्शन को, मिड गट की इप्थीलियल सेल्स को, ठीक है, बाइंड्स टू मिड गट इप्थीलियल सेल्स, ठीक है, उनको क्या कर देता है, ठीक है, इट डिस्ट्रॉयज देम, ठीक है, डिस्ट्रॉयज देम, एंड उससे क्या हो जाता है, जो मिडगट है उसमें पोर्स बन जाता है, ठीक है, पोर्स आर फॉर्मड इन द मिडगट, ठीक है, एंड उन पोर्स से ब्लीडिंग होगी, ठीक है, कंटेंट्स लीक आउट हो गए, अल्टीमेटली जो इंसेक्ट है ना, ठीक है, विच लीड्स टू डेथ ऑफ द इंसेक्ट, डेथ ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है, तो सबसे अगर ये गट है इंसेक्ट का, तो आपको पूछना पहले कुछ क्या बात पूछी जाएगी थी, जब ये प्रोटीन इसने इंजेस्ट किया तो ये क्या ये प्रोटीन पहले से एक्टिव था, नहीं एक्टिव नहीं था, ये पहले इनएक्टिव था, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रेड कैप रखूँगा, तो ये रेड कैप रिमूव हो जाती है, ये अंदर एक्टिव हो जाता है, तो किससे एक्टिव हो जाता है, अल्कलाइन पीएच से, अल्कलाइन पीएच से एक्टिव हो जाता है, ठीक है, फिर कहाँ पे बाइंड करता है, फिर मिडगट की इप्थीलियल सेल पे बाइंड करता है, ठीक है, ये मिडगट है, इसकी इप्थीलियल सेल्स है, तो इन पे बाइंड करता है, ठीक है, तो ऐसे इन मिडगट की इप्थीलियल सेल से बाइंड करता है, ठीक है, एंड बाइंड करके अल्टीमेटली क्या करता है, उस मिडगट में पोर्स क्रिएट करा देता है, ठीक है, एंड पोर्स क्रिएट करने से जो ब्लीडिंग वगैरह होती है, जो इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी वजह से जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है कि कैसे ये डेथ कॉज करता है इंसेक्ट की, ठीक है, ना आप ध्यान दोगे, ठीक है, किन किन इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर नोट करना है आपको, किन किन इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक होता है, ठीक है, सो इट इज़ टॉक्सिक टू 3 ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, 3 ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट्स के लिए मेनली टॉक्सिक होता है, ठीक है, एक तो इसमें आ जाते हमारे जिनको कहते हैं लेपिडोप्टेरेंस, ठीक है, इसमें आ जाते हमारे कोलियोप्टेरेंस, ये ग्रुप्स हैं इंसेक्ट्स के, ठीक है, क्लासिफिकेशन में ग्रुप्स है, एंड इसमें आ जाते हैं हमारे डिप्टेरेंस, तो ये कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है किन ग्रुप्स के लिए टॉक्सिक होता है, तो देयर आर 3 ग्रुप्स, लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस, ठीक है, लेपिडोप्टेरेंस में एग्जांपल आप याद रख सकते हो, इसमें कौन सा इंसेक्ट आता है, इसमें आता है टोबैको बड वर्म, ठीक है, बड वर्म आता है इसमें, आर्मी वर्म आता है इसमें, ठीक है, बड वर्म, आर्मी वर्म, ठीक है, ये आ जाते हैं इन लेपिडोप्टेरेंस में, कोलियोप्टेरेंस में आपके आ जाते हैं बीटल्स, ठीक है, तो डिप्टेरेंस में आपके आ जाते हैं फ्लाइज मॉस्किटोज, ठीक है, तो इन सब के लिए ये टॉक्सिक होता है, ठीक है, तो बस आप इतना याद रखो, लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस के लिए टॉक्सिक होता है, ठीक है, अब आपको याद रखना है, ठीक है, अब आपको याद रखना है, ठीक है, इस क्राइजीन जो क्राइजीन ये प्रोड्यूस करता है क्राई प्रोटीन, ठीक है, हमने बोला नॉर्मल लाया हमने कहाँ से, बैसिलस थेरेंजीनेसिस जीन लाया, ठीक है, अब जो बैसिलस थेरेंजीनेसिस है उसमें क्राइजीन के वेरियस टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो क्राइजीन है, ठीक है, इसके वेरियस टाइप्स हैं, ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइजीन, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्राइजीन होता है जिसको हम बोलते हैं क्राई फर्स्ट AC 1AC, हमारे पास और एक वेरिएंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्राई सेकेंड AB, ठीक है, हमारे पास और एक वेरिएंट होता है जिसको बोलते हैं क्राई फर्स्ट AB,
ठीक है, ये मेन जीन्स है हमारे पास। ठीक है, अब आपको याद रखना है इन जीन्स से जो प्रोटीन्स बनते हैं ना वो थोड़ा सा डिफरेंशियल इफेक्ट दिखाते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स को कॉटन के केस में अफेक्ट कर प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो ये क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई सेकंड ए बी है, ठीक है, ये इनसे जो क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस होता है वो कंट्रोल करता है कॉटन बॉल वर्म्स को। ठीक है, ठीक है, दीज जीन्स कंट्रोल या प्रोटेक्ट दिस कॉटन प्लांट अगेंस्ट कॉटन बॉल वर्म्स या बॉल वर्म्स सीधे आप कह सकते हो। ठीक है, एंड जो ये क्राई फर्स्ट ए बी है, इट कंट्रोल्स कॉर्न बोरर्स, कॉर्न बोरर्स। ठीक है, तो क्राइजीन की भी डिफरेंट टाइप्स है, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, एक तो क्राई फर्स्ट ए सी है, सेकंड ए बी है और क्राई फर्स्ट ए बी है। ठीक है, ये जो फर्स्ट ए सी और सेकंड ए बी है ना, ये कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉल वर्म्स को, एंड ये जो क्राई फर्स्ट ए बी है कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगर हम फिर से आएंगे इसको टॉपिक को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हमने बोला जो पहली जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक प्लांट्स की, दैट इज़ अ ट्रांसजेनिक कॉटन। ये आपको जेके बोस में क्वेश्चन आएगा तो आप याद रख लेना इसको। ठीक है, तो हमने बोला ये ट्रांसजेनिक कॉटन जो है इसको हम बीटी कॉटन भी बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट बीटी कॉटन। ठीक है, हम इसको बीटी कॉटन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बोला ये बीटी कॉटन जो है इट इज़ रेजिस्टेंट टू पेस्टिस। ठीक है, पेस्टिस क्या है, पेस्टिस आर द इंसेक्ट्स विच डिस्ट्रॉय प्लांट्स। ठीक है, और हमने बोला हमने इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, हम एक जीन ट्रांसफ़र करते हैं जिसका नाम है क्राइजीन। ठीक है, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम अ बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का नाम क्या है, बैसिलस थेरेंजेनेसिस। ठीक है, एक बैक्टीरियम बैसिलस थेरेंजेनेसिस से हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द कॉमन कॉटन प्लांट। ठीक है, तो फिर ये जो क्राइजीन है नॉर्मली ये क्या करता है, ये बीटी इसको नाम दिया है मैंने इसलिए क्योंकि बैसिलस थेरेंजेनेसिस से जीन लाया। ठीक है, अब ये क्राइजीन क्या करता है, क्राइजीन एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं क्राई प्रोटीन। ठीक है, तो क्राई प्रोटीन जो है ये एक टॉक्सिक प्रोटीन होता है इंसेक्ट्स के लिए, इट इज़ टॉक्सिक टू इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कह सकते हो आप इसको। ठीक है, नॉर्मली ये इनएक्टिव प्रोटीन के जैसे बनता है। ठीक है, बट जब इसको इंसेक्ट खाता है, व्हेन द इंसेक्ट इंजेस्ट दिस प्रोटीन, ठीक है, तो ये उसका अल्कलाइन पीएच जो होता है गट का उसका, तो वो उसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये मिड गट की एपिथेलियल सेल्स को बाइंड करता है, बाइंड्स टू मिड गट एपिथेलियल सेल्स, एंड जब ये बाइंड करता है उनको तो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय करने से क्या हो जाता है, मिडगट में पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो पोर्स जब बन जाएंगे वहाँ से ब्लीडिंग लीकेज ऑफ द कंटेंट्स हो गए, अल्टीमेटली जो है इस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब हमने बोला कि कौन से ग्रुप्स को ऑफ इंसेक्ट्स को ये मेनली टारगेट बनाता है, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स और डिप्टेरन्स आ जाते हैं ये तीन ग्रुप्स। और हमने बोला कि इस क्राइजीन के वेरियस टाइप्स भी है, हमारे पास क्राई फर्स्ट ए सी है, हमारे पास क्राई सेकंड ए बी है, एंड हमारे पास क्राई फर्स्ट ए बी है। ठीक है, जो फर्स्ट ए सी और सेकंड ए बी है ये कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म्स को, एंड ये जो क्राई फर्स्ट ए बी है ये कंट्रोल करता है कॉटन बोरर को। ठीक है, ओके, ठीक है।